So I guess it's 9:30. We can start the session. Uh, Hello everyone, welcome to Pro Trainees BBS Estimation Demo. So now I will welcome our today's expert, Anudesh sir. So welcome you sir, and now over to you. Hope you have a great session. Thank you. All right, thank you. Thank you very much. So guys, welcome back again. A very good evening to everyone present here. And as you all know that today's session is about the demo, okay? And the course topic is quantity estimation. Like a lot of different things have been included here, you know, looking into the people who are just going to start their career in the industry, or people who are fresher or having 1 2 3 years of experience like that. So we'll start by layout, right? Survey and layout thing, right? So this is a part which has been included in this course. Later on, moving for next, quantity estimation, we'll be taking a case study of a building structure, right? And we'll be doing the complete, you know I'll be doing the complete quantity estimation of that. Moving up next, we'll be doing the bar bending schedule as well. For the same case study, for the same structure, we'll be looking into the bar bending schedule part, and then rate analysis, right? And then moving on ahead, a billing part as well. So all these things are included in this course. Let me repeat it again, right? Survey and layout work, then you'll have your quantity estimation, then bar bending schedule, and then billing thing. All right, so let me just give you a small demonstration of all these things. What are the things we are going to cover in this entire course within this 1 month, right? Okay, so we'll go ahead and start with the layout, right? The very first thing, okay, the very first thing as an engineer, what you need to understand, okay. So please tell me a little bit about you. Okay, so my name is Anudesh Sachan, right? I worked as a planning engineer with Synergies Global Services, and my last project was for Mumbai Railway. I was working as a planning engineer there. Though in my career, I've also worked as a quantity estimation, called a quantity surveyor, right? So that's why I'm here, right? I was not a billing engineer, but yes, throughout the journey so far, right? I started as an GT, right? As you all start, and then moved into the quantity estimation part, and then finally into the planning, right? And right now I'm a freelancer educator, and that's what a bit about me. Now let us continue with the classes. Okay, so the very first thing we'll be looking into the uh, we'll be looking into the uh, part quantities, sorry, we'll be looking into the layout part, right? So as an engineer or as a fresher, the very first thing which you should be aware of, right? And that is what you should be aware of: layout part, right? You should know how to do a layout as an engineer, right? So with the help of a case, right, we'll see if I'll give you a very little information about my plot. Let's suppose I have told that my plot location is here, right? And I'll give you some references with the help of road or any other benchmark near to my plot, and I'll ask you to do the proper layout of that, right? Do the proper marking of that so that I can achieve something like this, right? I can achieve something like this. So you should be aware of that thing, how you do that, right? So this is something which we'll be studying about, the layout process, how you can do that. And then moving up next, okay, we'll be covering survey, right? Survey part. So let me go to the survey.
And in survey, what we'll be doing, the very basic, right? First of all, we'll be looking into different types of survey available with us. And then moving ahead, we'll be looking into how to read the staff reading, right? Using the machine, right? And auto label, right? Basically the auto label machine. We'll not be focusing on, total station, because that's not possible on these online classes. But I'll give you a demonstration about the auto label machine, how you'll read the readings on the staff, and basically how you do the RLs and all, right? The methods which you have studied in your college days, okay. Height of instrument method and rise and fall method, we'll be looking into them practically, okay, so that you should be able, or you should be aware of how to do this kind of survey and all, right? At least as a site engineer, you should be able to use this machine, right? Not total station, but this is something quite important. You should be able to check out the RLs and all other things. Okay. Now we'll be taking up some example, okay, to fulfill these things, how to do the RL and all, how to take readings, and how to find out the error. And then moving up next, how to make a profile of any surface like this, right? If let's suppose I have given you an undiluted surface and I ask you to make a profile of that, right? So this is called as profile leveling. Could be an in case of a road, or could be a drain as well, drain as well, right? And then we'll be looking into how you can estimate the earthwork quantity, okay, with the help of surveying, okay, and into the contour part as well, right? So this is something we'll be covering into the survey, a bit of basics, right? How to do RLs and all these things. And then the major portion would be into the quantity estimation, right? Let me open up the drawings, okay. So this is the cross section of that, right? And we'll be looking into the different drawings. This is the center line drawing, and then ground beam, plain, okay, plain filling drawing, superstructure, slab beam, right? And tiles and other details as well. Cross section is available with us. So looking into all these drawings, we'll be doing the complete estimation of a building structure, right? This is how the sheet will look like, right from starting the site cleaning work to the finishing. Okay, we'll be looking the complete estimation, how you'll do that. Also, we'll prepare a BOQ, bill of quantity, right? And now bill of quantity is a tender document. Might be you guys might be you guys knowing about this, right? So when the BOQ get approved, and how BOQ should be prepared, when it is important, what does BOQ gives to you, we'll be discussing on all these concepts, theoretical concepts as well. And then similarly, we'll be preparing these kind of sheets, right? So that we can do this entire work in just a clicks, right? First of all, we'll see how to estimate everything, and then you can derive these kinds of template. This is generally for what is staircase, right? So let's suppose you want to do this. Okay, so from the next time onwards, if you don't want to do this thing manually, you can, just put these value here and you'll get the entire result, how much quantity of concrete and all other materials are required to prepare a staircase. So this is something we'll be looking into all these things from the start to the end, with the reference to the IS code. That is quite important, okay, because measurement is only not sufficient. You should know what are the things given into the IS code as well, okay. So we have an entire list of important IS code, I would say. The IS code is 1200, okay. The mode of measurement IS code 1200, and you have 28 parts under 1200, okay. IS code 1200 ke andar you have 28 parts, okay. So out of those 28 parts, we'll be looking into some important, like the IS code for earthwork, IS code for concrete work, for plaster, painting, right? And work. And then we'll be looking into different concepts of deduction, okay. And there are few other parts as well. Let's have a look on them, okay. Then point and polishing, okay. Similarly, okay, this is a paving, floor finish, and dado skirting IS code.
Okay, and if you'll go into this paint and plaster work, so there are different conditions given. People who have already worked into the estimation part, they might be knowing about all these things. Then deduction rule is there for the plaster, right? But that deduction rule is not only sufficient with this only condition. You have to know about all these things also. It depends on where your frame has, okay, the opening. So this is the opening on the wall side, and this is the frame of doors or window, whatever it is in case. So in that case also, the deduction depends from which side you will deduct how much. So that also depends. So similarly, we'll be doing the complete estimation with reference to the IE code. You should know. Okay, will not be covering that all 28 because nobody all. So the thing is, whatever whatever comes in day to day, we'll be discussing those parts, right? So this is how we'll cover the estimation. Now, moving up next, okay, we'll also be discussing about the productivity calculation. How you can do the productivity calculation for labor. Let's suppose you have the entire work. So how you will, find out the total number of labors required. Okay, ठीक है. तो कैसे हमें प्रोडक्टिविटी का एस्टिमेशन करना है, किस तरीके से हम प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करेंगे अपने किसी भी एक्टिविटी के लिए, जिस भी टाइप ऑफ वर्क की आप बात करोगे, जो भी नॉर्मली कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, जनरली विल बी डिस्कसिंग अबाउट कि कितना लेबर लग जाएगा. ठीक है, और ये सारा कुछ DAR से आएगा. ठीक है, वी हैव लेबर कोएफिशिएंट और उनकी हेल्प से ये सारी शीट बनाई गई है. अभी के लिए बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है. लेबर कोएफिशिएंट क्या होता है, कैसे आता है, उन सारी चीजों के बाद में हम डिस्कस करेंगे उन सारी चीजों के बारे में. ओके, एंड देन विल मूव इनटू द रेट एनालिसिस पार्ट. ठीक है, कि जब आपको BOQ में रेट फिल करने होते हैं तो आपको अपने साइड से भी क्या करना होता है, रेट एनालिसिस करना होता है. तो रेट एनालिसिस कैसे करते हैं, कौन से कंपोनेंट इंपॉर्टेंट हैं रेट एनालिसिस का सोचते वक्त, और इस तरीके से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क के रेट एनालिसिस को देखेंगे. ओके, तो ये सारी चीजें हैं जो हम कवर करेंगे, और इसके बाद हम मूव करेंगे कहाँ पर, we will move into another direction, and let me open up that. उसके बाद हम मूव करेंगे बार बेंडिंग शेड्यूल की ओर. ठीक है, हमको एस्टिमेशन करना जब आ जाएगा तो ये भी क्वांटिटी एस्टिमेशन का ही पार्ट है. आपको रेनफोर्समेंट भी एस्टिमेट करना होता है. इस तरीके से आप रेनफोर्समेंट की शीट बनाओगे. ठीक है, कि कैसे आपको रेनफोर्समेंट मेजर करना है विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग्स, राइट? And with the help of all these concepts, we'll be covering all this structure. Okay, beam, column, stirrups, okay, pile footing, right? And then different types of stirrups, columns, different types of beam frames, right? We'll be discussing all these things जितने भी scenario होते हैं, one way slab, two way slab, right? Crank, right? Staircase, and I guess Chhajja was also there, but okay, we'll take a look on that. Okay, so this is going to be the entire part of bar bending schedule, right? And then we will prepare this kind of sheet जिससे आपको आइडिया हो कि कैसे बार बेंडिंग शेड्यूल बनाया जाता है और उसका क्या हेल्प होता है. So if you'll see here, we have 8 mm bar, 10 mm bar, 12 mm bar, कितना kg में कौन सा बार यूज हो रहा है, ये सारी चीजें यहाँ पर इस तरीके से लिखी जाती हैं, और ओवरऑल कितना kg आपका रेनफोर्समेंट यूज होता है, वो सारी चीजें आपको इस तरीके से शीट में रिप्रेजेंट करनी होती हैं. ऑलराइट, मूविंग अहेड, अनदर थिंग वुड बी बिलिंग. ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चीज. तो बिलिंग बहुत ब्रॉड है अपने आप में. अगर आप प्रोसेस की बात करते हैं तो इट्स सिंपल प्रोसेस, राइट? आपके पास कुछ क्वांटिटीज हैं, आपके पास रेट है, आपने मल्टीप्लाई किया, आपको टोटल अमाउंट मिल गया. आप एज अ बिलिंग इंजीनियर इंश्योर करते हो कि आपकी कंपनी में समय समय पर जितना भी काम आप करते जा रहे हो, पैसा आ रहा है. दैट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड दैट्स अ मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ लेमैन लैंग्वेज, राइट? बट उसके लिए भी बहुत सारी चीजें आपको जानना जरूरी है, राइट? एज अ बिलिंग इंजीनियर यू शुड नो अबाउट द प्राइस एस्केलेशन कॉन्सेप्ट. किस तरीके से प्राइस एस्केलेशन होता है और कैसे काम करता है, उसके बारे में. चेंज ऑर्डर क्या होता है, कैसे चेंज ऑर्डर किस किस केस में होते हैं, डेविएशन होती है क्वांटिटी में, एक्स्ट्रा आइटम, सब्स्टिट्यूट आइटम्स, रेट ओनली आइटम्स, ये सारी चीजें क्या होती हैं, राइट?
सिक्योर एडवांस क्या होता है, मोबिलाइजेशन एडवांस क्या होता है, इंपॉर्टेंट टेंडर क्लॉज क्या होते हैं, व्हाट इज LOI, LOA, ऑल दीज थिंग्स, राइट, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्स, ठीक है, ये सारी चीजें, RA बिल्स, ठीक है, ये सारे RA बिल्स में आप क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाते हो डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट ऑल्सो, ठीक है, फाइनल बिल में कौन कौन से आप डॉक्यूमेंट लगाते हो, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इनको प्रैक्टिकली, ठीक है, कि मतलब आप कैसे एक समरी ऑफ पेमेंट बनाते हो, SOP कैसे बनाते हो, रिकंसलेशन किस तरीके से प्रैक्टिकली कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, व्हेन वी से अबाउट रिकंसलेशन, इसी तरीके से मोबिलाइजेशन जो रिकवरी है वो डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज में, क्लॉज के हिसाब से किस तरीके से वो वर्क करती है एक्चुअल में, इन सभी चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे, राइट। तो इन अ नटशेल ये हमारा एंटायर यू नो चीजें होने वाली है, ये सारे एंटायर टॉपिक होने वाले हैं जो कि हम इस पूरे के पूरे 30 दिन में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो a lot of things will be included in bar bending, schedule estimation, billing, right, and basic things will be included into the survey and layout part, right. So this is about the content in a glance. Now I would start a class, okay, and I would start with a few things. I would give you a demonstration of that, but before that I would like to you guys. I would like to ask from you guys, if you guys have any question, you can post on the chat box right now. Okay. Rohit, it's of building structure. Billing कॉमन होती है, मतलब मेक मतलब बिलिंग एक आपको कॉन्सेप्ट जानना है डिफरेंट चीजों का, ठीक है, तो हम किसी एक पर्टिकुलर चीज को फोकस नहीं करेंगे बिलिंग में बेसिकली, राइट। बिलिंग में आपको कॉन्सेप्ट जानना है कि यार रिकंसलेशन होता कैसे है, कैसे करते हैं, मोबिलाइजेशन रिकवरी क्या होती है, कैसे करते हैं, RA बिल्स क्या होते हैं, कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, तो वो एक कॉमन पार्ट होता है। और उसके अलावा फिर जो आपने ड्राइंग्स देखी वो BBS और एस्टिमेशन जो है वो आप बिल्डिंग स्ट्रक्चर का कर रहे होंगे। ये कोर्स बाई लैंग्वेज ही होता है, लाइक हिंदी इंग्लिश दोनों ही होती है, डिपेंडिंग, मतलब आई एम ऑल्सो कंफर्टेबल इन हिंदी, राइट। तो मैं इंश्योर करता हूँ कि मतलब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यार, एक कोई लैंग्वेज बाउंडेशन नहीं है, बट अगर कोई ऐसा आ गया जिसको सिर्फ इंग्लिश समझ में आती है, सो वी हैव टू लुक इनटू दैट थिंग एज वेल। अब मैंने इसीलिए आपसे सबसे पहले क्वेश्चन पूछा था, तो यू गाइस सेड दैट वी आर ओके, दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड, बट मोस्ट प्रोबेबली मतलब आप ये मान के चल सकते हो 70% चीजें हिंदी में ही होती हैं, एंड द 30% थिंग्स विल बी ऑन यू नो FIDIC will not be included. FIDIC is the part of contract, and we are not going deep inside into the contract. This is a quantity estimation class. Anuj. कब से स्टार्ट होगा? 30 और 31st. Omkar, if you are interested, you can just connect with the team. Of which structure, sir? Is this of building structure? बोला तो building structure, Rohit. Not pre-recorded. There will be live classes for 1 month, and then you'll get the recordings of those classes as well. Okay. Thirty days, 30 hours. Okay. The class schedule will be shared. The total entire course duration will be 30 hours, 1 hour per day. You'll get the notes. Whatever the things you are seeing here, जो भी हम चीजें discuss कर रहे हैं, right? Let me just, if I have opened up here, right? मतलब जो भी चीजें आप देख रहे हो इस कोर्स के दौरान, जैसे कि ये सारे नोट्स हो गए, ठीक है, जो जो लोग फ्रेशर हैं उनको काम में बहुत आएंगे कि इट्स जस्ट फ्रॉम द बेसिक लेवल, ठीक है, जिसको मतलब एकदम ही स्टार्ट है, जिसका बिगनिंग है, तो सारी चीजें नोट्स
दिए हुए हैं, तो ये सारी चीजें जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ऑल दोस थिंग्स विल बी शेयर्ड विद यू, राइट, टाइम टू टाइम। बट इन जैसे जैसे आपकी क्लास होती जाएंगी, तो जो जो भी चीजें होंगी वो सारी चीजें शेयर होंगी, राइट। चाहे वो एक्सेल देख रहे हो आप, या आप पीटी देख रहे हो, या जो भी देख रहे हो। ओके, what are the things will be included in this course? विकीज आईफोन, अभी तक वही चीज हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या क्या चीज कोर्स में इंक्लूडेड होंगी। ओके, अब उसमें से अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। Notes and material will be provided. Certificate will be provided. You can connect with the team on discussion to that. Wiki iPhone, do you still need a detail on that? Okay, so I guess no question. We can move ahead, right? Recognized to any institute. No, I think these are not recognized by any institutions, but yes, we do have, partnership with a lot of different, I would say organizations. You can check out in the website and you can connect with the team for the details, right? So it's not like, a 1 month course cannot be recognized by any of the institution, right? If a course have a long duration, then definitely, okay. Okay, I'll give you the detail, Vicky. Timings will be in the evening, most probably from 9 onwards, 9 to 10, 9 to 10, 9 to 10:30, like that. You will get the certificate, yes. So Rohit will be using drawings of different projects. Okay, ये कुछ basic है, ठीक है। एक project का, it's a complex, ठीक है। ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग है बेसिकली, ठीक है, उसका प्रोजेक्ट है। और इसके साथ साथ एक और प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है। लेट मी जस्ट शो यू दैट ड्राइंग एज वेल, बट दैट प्रोजेक्ट इज गोइंग टू बी द, you know practice for you guys. Give me a second. Okay, so we'll be using another project as well for the, practice purpose. Those who want to join can, fill out the form, or just check out the link which has been shared. Dharmendra, because my property valuation course is also going on. So property valuation course will end up, and then I guess this course will start. This is going to start from 30 or 31st. We have 30. Yeah, 30.
sorry, 30th of April is the start of this course. Tentatively, this is going to start from 30th. You can do 2 courses, depends on the timing. So your property valuation will end up, then this will start. Can we complete quantity estimation of full project? Yes, we will be covering a full project. Okay, high-rise building we consider hogi? No, high-rise building will not be considered. You cannot do the estimation of high-rise building and billing, BBS estimation, everything in this 30 days. Okay, so see, Harsh, good question. I'll explain your query in a minute, right? With final billing, yes, you'll get the demonstration how the billing thing works, right? Entire thing, whatever is the important concept which you should know as an experience of like 2 years, maybe you'll be knowing all those things how to do in billing, right? Don't accept, don't just expect everything like a guy having 10 years of experience in any of the institution or in any of the courses you are actually doing. The real experience will come in sight, okay, when you'll go and start working. But yes, everything you'll be knowing after doing this. आप चेक कर सकते हो धर्मेंद्र एक बार. I haven't done diploma. I did my MTech and I completed in 2019. Okay, so Harsh, a question from your end, right? आपने बोला कि हाई राइज बिल्डिंग कवर होगी क्या? तो हाई राइज बिल्डिंग कवर नहीं होगी, राइट? क्योंकि अब देखो हाई राइज बिल्डिंग जब आप एस्टिमेट करते हो तो कुछ डिफरेंस नहीं होता है, राइट? थिंग्स रिमेन सेम. अगर कोई भी स्ट्रक्चर आप उसका एस्टिमेट करने जा रहे हो, लेट्स सपोज दिस इज एन स्ट्रक्चर और आप इसका एस्टिमेट करने जा रहे हो, राइट? तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट थिंग, राइट? यू शुड नो कि इस स्ट्रक्चर में आप कितना अपना एफर्ट बचा सकते हो, राइट? एंड दैट इज एन टास्क, इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ अ क्वांटिटी सर्वेयर. ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखते हो तो सिमेट्री है. इफ यू विल फाइंड आउट फॉर हाफ पार्ट, ओके, यू डोंट नीड टू डू फॉर द रेस्ट ऑफ द पार्ट, राइट? इसी तरीके से अगर कोई हाई राइज बिल्डिंग है उसमें मान लेते हैं कि 10 फ्लोर्स हैं, तो अगर आप एक फ्लोर का कर पा रहे हो देन डेफिनेटली यू विल बी एबल टू डू फॉर 10 फ्लोर्स. और ये एस्टिमेशन है बॉस, ठीक है, ये एस्टिमेशन है, राइट? अब अगर आपसे कोई ये बोलता है कि एस्टिमेशन में एकदम 100% एक्यूरेसी लेकर के आ जाओ तो वो गलत बोल रहा है, ठीक है? नाम ही है एस्टिमेशन. तो थिंग्स विल बी एस्टिमेटेड, ओके, नॉट एक्चुअल. एस्टिमेटेड और एक्चुअल में डिफरेंस होता है. आई होप यू कैन रिलेट नाउ. ओके, तो आप एस्टिमेट कर सकते हो बेशक इस तरीके से, और इसी तरीके से जब आप किसी भी ड्राइंग को लेकर के बैठते हो तो आपको देखना पड़ता है सबसे दो पहले इंपॉर्टेंट चीज होती है. द फर्स्ट थिंग, हाउ यू नेम इनटू द साइट, कैसे आप सॉरी ड्राइंग पर नॉमेनक्लेचर सेट करते हो ताकि आपको एस्टिमेशन करने में आसानी हो. दूसरी, आपको सिमेट्री ढूंढनी पड़ती है ताकि आप अपना एफर्ट बचा सको, राइट? रोहित, इतना ज्यादा मतलब क्यों आप मतलब जांच पड़ताल कर रहे हो? आई डिड एमटेक इन स्ट्रक्चर्स. All right, so any other question, or we can just start a bit and we can discuss about something. Yes, the full framing structure estimation, sorry, bar bending schedule will be covered. रोहित, और कोई क्वेश्चन रह गया है? ब्रिज, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर आल्सो. नहीं यार, ब्रिज और ये सारी चीजें का एस्टिमेशन नहीं करेंगे ओमकार. ओके, विल बी वर्किंग ऑन द बिल्डिंग पार्ट. अगर आपको एस्टिमेशन करना बिल्डिंग का भी आ जाता है तो आई नॉट से ब्रिज, बट जो अदर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जैसे कलवर्ट हो गया आपका, ये सारी चीजें हो गई, तो यू विल फील
कंफर्टेबल इन एस्टिमेटिंग दोस थिंग्स, है ना, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। और अगर मैं एस्टिमेशन की बात करता हूँ तो एस्टिमेशन में अगर एक लाइन में मैं बोलूँ तो ज्यादा कुछ होता नहीं है, एरिया और वॉल्यूम का कैलकुलेशन होता है। बट उस एरिया और वॉल्यूम के कैलकुलेशन में क्या डिडक्ट करना है, क्या ऐड करना है, क्या आईएस कोड में दिया गया है, वो चीजें जानना इंपॉर्टेंट होती है। और यही सेम चीज बिलिंग के साथ भी अप्लाई होती है, राइट। बिलिंग में भी क्या है, बिलिंग एक सिंपल सी चीज है ना। अगर आप उसको देखते हो कि यार बिलिंग कोई वैसे तो टफ काम है नहीं, बट आपको जो और भी चीजें जुड़ी हुई है, ठीक है, बिलिंग बिलिंग के साथ आपको क्लाइंट हैंडल करना आना चाहिए। आप ऐसे इंसान हो सकते हो, आप ऐसे इंसान होने चाहिए जो सही समय पर कंपनी में पैसा लेकर के आ जाए, राइट। आपको क्लॉज पता होना चाहिए, किस मटेरियल का आप एक्स्ट्रा क्लेम कर सकते हो, ठीक है, क्या एडिशनल हो रहा है, वो सारी चीजों की जानकारी हो जाएगी जब आपको, तब आप एक सक्सेसफुल बिलिंग इंजीनियर बन सकते हो। तो जो और भी जुड़ी हुई चीजें हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं, वो सारी जानने में आपको, अगर वो सारी चीजें आप जानते हो तो बेसिकली यू कैन वर्क एज अ बिलिंग इंजीनियर और एज एन क्वांटिटी एस्टिमेशन इंजीनियर, ठीक है। बाकी की चीजें तो हैं वो सिंपल है, चाहे वो बिलिंग हो चाहे वो क्वांटिटी एस्टिमेशन हो। Okay, so you worked already in infra, then that's good. If you find like आपको कुछ नई चीज अगर यहाँ पे मिल रही हो, then it's good. Otherwise, like अगर आपने खुद ही ये सारी चीजें करके रखी हैं, you are working into the industry, then this is not for you. All right. So let us start a bit, ठीक है, और थोड़ी बहुत चीजों की बात करेंगे, ठीक है, जनरल ऐसे ही। सबसे पहले बात करते हैं, आपने एस्टिमेशन शीट देखी, राइट, यू हैव सीन द एस्टिमेशन शीट, राइट, एंड देन यू हैव आल्सो सीन द बीओक्यू, राइट। बीओक्यू था, तो एक प्रोसेस अगर मैं समझने की कोशिश, उसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, प्रोसेस को समझते हैं, राइट, और फिर उसके बाद किसी पार्ट को उठाएंगे और उसको एस्टिमेट करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो हाउ इट हैपेंस इज, सी यू हैव अ क्लाइंट, थोड़ा सा कहानी है ये, ठीक है, एंड यू हैव अ कॉन्ट्रैक्टर, राइट। नाउ दिस पर्सन wants to construct a house, ठीक है, या हाउस नहीं, थोड़ा सा बहुत छोटा लगेगा, इसको एक बिल्डिंग बनवानी है, ठीक है। ये कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मान लेते हैं एक क्लाइंट है आपका, और उसने एक, उसको एक बिल्डिंग बनवानी है, राइट। ही हैव अ मनी, राइट, बट ही डोंट हैव पीपल और टेक्निकल पीपल हु कैन जस्ट एग्जीक्यूट द वर्क और उसकी बिल्डिंग कंप्लीट करवा पाए, ठीक है, या कुछ भी चीज बनाना है। नाउ ही विल रेज अ टेंडर, ठीक है, टू फाइंड द यू नो फिट पर्सन्स या ऐसे फिट कॉन्ट्रैक्टर्स जो आ करके उसके साथ काम कर सके और उसकी बिल्डिंग को बना सके, और उसके बदले में वो उसे क्या देगा, पैसा देगा। तो ही विल फ्लोट अ टेंडर। अब यहाँ पर बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर होंगे जो फिल कर रहे होंगे इस टेंडर को, राइट। देयर विल बी लॉट ऑफ डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हु विल बी फिलिंग आउट दिस टेंडर, ओके। ये मार्केट में जाएगा इस तरीके से, मतलब वेबसाइट्स में जाएगा, ठीक है, और फिर बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स उनको फिल करेंगे। नाउ उस पॉइंट ऑफ टाइम में ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, इनको क्या करने की जरूरत थी, ठीक है, जैसे ही टेंडर देखा, अच्छा ये काम है, ये हम करते हैं, हमारी कंपनी इस तरीके का काम करती है, ठीक है। तो व्हाट विल डू, ही विल सी कि अच्छा क्लाइंट ने ये काम बोला है, ऐसा ऐसा है, और ये सारी रिक्वायरमेंट है टेंडर की, तो ये करेगा रेट एनालिसिस, है ना। और ये करके देखेगा कि भाई मेरे हिसाब से कितना काम, कितना पैसा मैं कोट करूं यहाँ पर, कि मेरे को ये काम इतने पैसे में कर देना है, ठीक है। ही विल कोट हिज अमाउंट। इसी तरीके से बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे ABCD, दे विल कोट डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट, ठीक है, ऑन द टेंडर्स। अब ये टेंडर्स जाएगा यहाँ पर, इसका होगा इवोल्यूशन, राइट। अब एक चीज और, ये रेट एनालिसिस जो कर लिया इसने, अब ये जो रेट फिल करेगा, तो ये जो BOQ था, इट्स एन टेंडर डॉक्यूमेंट, ठीक है। जब आप कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी, जब आप टेंडर टेंडर डाउनलोड करते हो वेबसाइट से, तो आपको BOQ मिलता है वहां पे ना। BOQ शेप एंड साइज डिफर्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अगर वो
अगर वो एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट है, कोई लमसम कॉन्ट्रैक्ट है, पीएमसी का कॉन्ट्रैक्ट है, तो वहां पर एक लाइन का बीओक्यू होता है कि भाई ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन होगा कि ये स्कोप है काम का, ये आपको करना है, मॉनिटरिंग करनी है, पैसा बता दो लमसम में कितना लोगे, खत्म, वन लाइन, सिंगल लाइन बीओक्यू। बट अभी जो आपने देखा वो एक बड़ा बीओक्यू था जिसमें हर एक डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम लिखा हुआ था और वहां पर अलग अलग उनकी क्वांटिटी दी गई थी। तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्टर को क्या मिल जाता है, क्वांटिटीज मिल जाती हैं कि अच्छा ये क्वांटिटी है जो क्लाइंट करवाएगा और ये मेरा टोटल स्कोप ऑफ वर्क है। तो वो उसमें रेट फिल करके कॉन्ट्रैक्टर क्लाइंट को वापस से शेयर कर देता है। नाउ क्लाइंट व्हाट विल डू, क्लाइंट इवैल्यूएट करेगा, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन पॉइंट, सॉरी, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन पॉइंट क्लाइंट क्या करेगा, उसको इवैल्यूएट करेगा कि भाई आप टेक्निकली साउंड हो या नहीं हो, आप फाइनेंशियली साउंड हो या नहीं हो इस काम को करने के लिए। ना टेक्निकली एंड फाइनेंशियली मींस बहुत सारे लोग होंगे, मान लो मैं एक छोटा सा सस्ता एग्जांपल लेता हूँ, 100 रुपए का काम था, कुछ ने बोला कि मैं 90 में कर दूंगा, किसी ने बोला 80 में कर दूंगा, किसी ने बोला 60 में कर दूंगा, एक था जिसने बोला मैं 110 रुपए लूंगा, है ना। तो बहुत सारे लोग हैं, तो जरूरी नहीं है कि जो 60 में बोल रहा है उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। हो सकता है जिसने 110 बोला है उसको कॉन्ट्रैक्ट मिले, जो कि एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बोल रहा था, ठीक है। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो बंदा टेक्निकली साउंड था, मतलब आपके पास बहुत उस टाइप के प्रोजेक्ट्स करने का प्रीवियस पास्ट एक्सपीरियंस था, राइट। वो आपको टेक्निकली साउंड बनाता है। अगर आपका प्रोजेक्ट है 5 साल का और जो भी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है, इन प्रीवियस इफ यू हैव डन दोस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, मान लो किसी ने 10 प्रोजेक्ट्स किए थे, उतने ही बड़े, 4 करोड़ का प्रोजेक्ट था, उसने 10 करोड़ के प्रोजेक्ट कर रखे हैं, 5 प्रीवियस एक्सपीरियंस है। अब वो कुछ अच्छा पैसा मांगेगा तो सामने वाला क्लाइंट देगा ना कि चलो 10 रुपए और एक्स्ट्रा लगेगा बट मेरा काम अच्छे से होगा। इन अ सेम वे यू शुड बी फाइनेंशियली फिट ऑल्सो। फाइनेंशियली फिट मतलब अब प्रोजेक्ट था 10 करोड़ का, आपने पहले करके रखा है 5 लाख का काम, अब आपको कैसे दे देगा, आपको एक्सपीरियंस ही नहीं है इतने बड़े काम का। इन अ सेम वे आपका टर्नओवर ही नहीं है उतना ज्यादा, कभी मान लो पेमेंट रुक गई आपकी, तो आप तो अपनी लेबर को ही नहीं दे पाओगे पैसा, उस टाइम पे तो क्लाइंट को ही लॉस होगा ना यार, उसका काम ही नहीं होगा, करेक्ट। तो इस तरीके से इवैल्यूएट करके क्लाइंट डिस्कस करेगा, मतलब इवैल्यूएट करेगा और ही विल कम अप कि चलो इसको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर देते हैं, राइट। और यहाँ पर जा करके एक बंदे को क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो जाएगा। रीट एनालिसिस हुआ, ये सारी चीजें हुई। नाउ व्हेन वर्क स्टार्टेड, जब काम स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो एज पर वीओक्यू काम होना स्टार्ट हुआ साइट पे। अब आप साइट पे जाते हो, मेजर करते हो, सारी चीजें करते हो, ठीक। और फिर वहां पर जो भी चीजें आती हैं, ठीक, मतलब इन इनिशियल स्टेज ऑल्सो यू विल डू द एस्टिमेशन फॉर ऑल अदर थिंग्स, ठीक है। इनिशियल स्टेज में भी आप एस्टिमेट कर रहे होगे चीजों को, जब आप प्रोक्योर करने वाले मटेरियल तब तब भी आपको एस्टिमेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कितना सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, क्या क्या चीजें चाहिए, कैसी चाहिए, प्रोक्योरमेंट प्लानिंग से रिलेटेड। देन एट द टाइम ऑफ बिलिंग अगेन यू विल डू द एस्टिमेशन, ठीक है, कि साइट पे क्या एक्चुअल में काम हुआ है, ठीक है। कोई ऐसी चीज हो सकती है जो इंक्लूडेड नहीं थी, बट क्लाइंट आस्क्ड यू एट द सम पॉइंट ऑफ टाइम बीच में कि यार ये काम एक्स्ट्रा करना है, तो दैट नीड टू बी टेकन केयर, है ना, उसका भी तो पैसा लोगे, छोड़ोगे थोड़ा। तो जब आप बिलिंग करते हो तो अगेन आप क्या करते हो, एस्टिमेट करते हो, और उसके हिसाब से जो एक्चुअल क्वांटिटीज आपने साइट पे की हैं उनको क्या करोगे, आप बिलिंग में लिखोगे और वहां पे बिलिंग प्रोसेस होती है। तो दिस गोज ऑन, लाइक ये बीच में जब आपको रेइनफोर्समेंट काटने देना है किसी को, ठीक है, तो भी आपको उसको बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, इसके पहले आपकी बार बेंडिंग शेड्यूल शीट बनी होनी चाहिए। प्रोक्योर करना है आपको रेइनफोर्समेंट, तब भी आपकी बीबीएस बनी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें होती है। नाउ हम एक और चीज जानते हैं, लाइक कुछ लोगों को पता होगा कि जो रेट्स हैं, ठीक है, नॉर्मली हम बोलते हैं कि एसओआर में दिए हुए हैं शेड्यूल ऑफ रेट में, राइट। एंड हम शेड्यूल ऑफ रेट उठाएंगे और वहां से रेट उठा देंगे और लगा देंगे और बीओक्यू बना देंगे। इज इट एवरी टाइम करेक्ट? क्या ऐसा सब हर बार होता है? ठीक है, अगर ऐसा हर बार होता है तो फिर यार ये सारी एंटायर प्रोसेस करने का मतलब क्या था, राइट। आपके एसओआर में रेट्स दिए हुए हैं किसी काम को करने में। ना हु डोंट नो एसओआर, दिस इज अ शेड्यूल ऑफ रेट डॉक्यूमेंट फॉर ईच एंड एवरी पीडब्ल्यूडी एंड सीपीडब्ल्यूडी, ठीक है, सबके एसओआर डॉक्यूमेंट होते हैं हर एक ईयर के फॉर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क। बिल्डिंग स्ट्रक्चर का अलग होगा, हाईवेज का अलग होगा एंड लाइक दैट, ठीक है। तो एसओआर में रेट्स दिए होते हैं हर एक टाइप ऑफ वर्क को करने के लिए ना। होता कि सारे रेट्स यहीं उठा करके रख दिए जाते, यहीं से रेट उठाए होते, सेम टोटल अमाउंट आता, क्वांटिटी ने भी यहीं से रेट उठाए होते, सेम उसका अमाउंट आता।
कॉन्ट्रैक्टर्स ने भी यहीं से उठाए होते, सेम अमाउंट आता। तो ऐसा तो नहीं हुआ है। दैट मीन्स व्हाट, द एज डॉक्यूमेंट इज ओनली यूज फॉर द रेफरेंस पर्पस। ठीक है, सिर्फ रेफरेंस पर्पस के लिए आप यूज करते हो, ऐसा कहीं भी नहीं है कि वही रेट उठा करके आप कॉन्ट्रैक्ट में बीओक्यू में फिल कर दोगे और उसके हिसाब से आपको चीजें अवार्ड होंगी या उसके हिसाब से बिलिंग होगी। ऐसा कभी नहीं होता। बिलिंग एसओआर के रेट के हिसाब से नहीं होती है, बिलिंग होती है आपके अप्रूव्ड बीओक्यू के हिसाब से। बिल ऑफ क्वांटिटी जो डॉक्यूमेंट है जो आपका अप्रूव्ड हो फाइनल, उसके हिसाब से बिलिंग होगी। अगर वहां पर लिखा है 100 रुपए, तो 100 रुपए के हिसाब से बिलिंग होगी। एसओआर में भले ही वो 10 रुपए लिखा हो। मेक सेंस? बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया, बट मैं एक एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, so the approved BOQ document would be the consideration during the time of billing। और ये कब होगा? जो आप रेट फिल करते हो, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट जीतते हो तो आपका वो BOQ अप्रूव्ड माना जाता है। दैट्स हाउ इट वर्क्स। ओके, होप यू गाइस अंडरस्टूड। नाउ कैन वी सी योर रिवाइज दिस important subject? I didn't get this. Okay, so I didn't get your things like जिसका भी लास्ट में कमेंट था, बट एनीवेज तो ये कहानी समझ में आई। ठीक है, ये स्टोरी समझना जरूरी थी। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको स्टोरीज से समझ में आती हैं। ठीक है, काम करना तो एक अलग चीज होती है, बट कॉन्सेप्ट जानना, ठीक है, व्हाट इज कॉल्ड एज एक्सपीरियंस। ठीक है, जब आप किसी इंटरव्यू में बैठोगे तो दिस इज कॉल्ड एज एक्सपीरियंस। ये आपको इधर उधर की मतलब उस चीजों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कितनी है। ठीक है, अगर आपको इंफॉर्मेशन ज्यादा है तो आप ज्यादा बोल पाओगे, इंटरव्यूज को क्वालिफाई कर पाओगे। ठीक है, एक सिंपल सा फंडे होता है। ऑलराइट, यस, द रिकॉर्डिंग्स विल बी प्रोवाइडेड। ठीक है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स। ऑलराइट, तो लेट अस गो बैक और एक छोटा सा केस सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेट मी कट दिस आउट। ठीक है, अब इस ड्राइंग में आप देख रहे हो यहाँ पर फुटिंग्स दी हुई हैं। ठीक है, दीज आर फुटिंग्स बेसिकली, राइट। ये फुटिंग्स हैं, इसके ऊपर आपको कॉलम मिल रहा है, राइट। और यहाँ पर आपको कॉलम का क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, राइट। तो इन दिस केस we have two different types of footing, F1 and F2. Details are given here, right? And we have two different types of columns, C1 and C2. Again, the cross section is given here, right? Now, if you want to do the estimation of this part, right? मतलब आप अभी अभी स्टार्ट से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, मैं बीच से कोई पार्ट उठा रहा हूं कि अगर आपको कितना ट्रंच यहाँ पर एक्सकवेट किया आपने, उसकी क्वांटिटी कितनी है, ठीक है, वो एस्टिमेट करना है तो आप कैसे करोगे। नाउ एज एन एस्टिमेशन गाय, ठीक है, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है उनके हिसाब से मैं बता रहा हूं आपका माइंडसेट कैसे आप बनाओगे एस्टिमेशन करने से पहले। ठीक है, आपको कोई भी चीज देखती है, मैंने बोला कि यार यहाँ पर एक्सकवेशन करना है, क्वांटिटी कैलकुलेट करके बताओ, राइट। तो सबसे पहले आपके माइंड पे क्या आएगा, आपको जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि एक्सकवेशन की यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होती है, राइट। सो इफ यू विल से एक्सकवेशन की यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होती है, क्यूबिक मीटर, राइट। नाउ क्यूबिक मीटर है, देन यू नीड टू फाइंड आउट द वॉल्यूम, एंड इफ यू नीड टू फाइंड आउट द वॉल्यूम यू डेफिनेटली नीड व्हाट, यू नीड लेंथ, विड्थ एंड हाइट। ठीक है, या मैं उसको बोल देता हूँ डेप्थ। ठीक है, तो ये सारी चीजें मुझे चाहिए। ओके, ये सारी चीजें मुझे चाहिए, मुझे 3 डायमेंशन चाहिए। सो हाउ आई विल फाइंड। ना, ये मेरे पास फुटिंग बनी हुई है, दिस इज अ फुटिंग, इसके ऊपर कॉलम है, मुझे इस तरीके से ट्रेंच खोदना है। ये जो इसकी डेप्थ है ये ऑलरेडी दी हुई है 2000, एंड दीज डायमेंशन आर इन व्हाट, mm। सो मेक श्योर टू कन्वर्ट देम इनटू मीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 2। मैं अभी नहीं करके बता रहा हूँ। अब आपको डेप्थ मिल गई, यू नीड लेंथ एंड विड्थ आल्सो। नाउ सी दिस इज द फुटिंग। ठीक है, क्या ट्रेंच सेम इस शेप का बनाओगे आप? कैन समवन टेल ऑन द चैट द ट्रेंच विच यू विल एक्सकवेट, और जो आप ट्रेंच बनाओगे यहाँ पर गड्ढा खोदोगे, क्या सेम लेंथ और विड्थ का रखोगे जो फुटिंग की लेंथ और विड्थ है? और अगर नहीं रखोगे तो क्यों?
Anyone? ओके, तो जो आपकी फुटिंग का डायमेंशन है वो सेम डायमेंशन नहीं रखोगे आप, राइट? व्हाई? सी, फुटिंग तो इतने में है, ये है आपकी फुटिंग इस तरीके से. Okay, we have got some comment on the chat box. Let's see. Width and length of trench is different. Width and length, yes, it will be different, right, Hansika? So it will be different. Like why? क्यों different रहेगी? Because ये आपकी footing है. Now अगर आप same इसी length का और width का trench खोद दोगे तो क्या नहीं होगा? You will not be able to, you know, put the shuttering here. आप shuttering नहीं लगा पाओगे, right? आप shuttering नहीं लगा पाओगे यहाँ पर. Okay. दूसरा, यहाँ पर लेबर बैठ करके आपकी काम भी करेगी, ठीक है, ये स्लोप लोप बनाएगी, ये भी नहीं हो पाएगा आपका. नाउ अनदर, आप और क्या, यहाँ पर ये जो आपकी कंक्रीट है, दिस विल कम इन डायरेक्ट कांटेक्ट टू द सॉइल, क्योंकि ये तो सॉइल है, ये जो एक्सकवेशन हो रहा है, ये सरफेस तो सॉइल है. एंड ऑलवेज रिमेंबर कि कभी भी किसी भी स्टेज पे आपकी जो कंक्रीट है वो सॉइल के कांटेक्ट पे नहीं आनी चाहिए, अदरवाइज वाटर सीमेंट रेशियो ड्रॉप होगा और जो स्ट्रेंथ है उसकी वो लूज होगी. राइट, सो दीज आर द रीजन यू लीव समथिंग, राइट? वर्किंग स्पेस जरूरी है, यस, बहुत सारे, मतलब ये तीन जो चीजें मैंने आपको बताई, वर्किंग स्पेस, राइट, वहां पर शटरिंग देनी है आपको, और दूसरा सीमेंट, कंक्रीट और सॉइल का कांटेक्ट जो होने से बचाना है. इन सारी चीजों की वजह से आप स्पेस छोड़ते हो. अब स्पेस छोड़ते हो, कितना छोड़ते हो वो बड़ी बात होती है, ठीक है? तो ये नॉर्मल प्रैक्टिस, अगर हमारी जो डेप्थ है वो 1.5 मीटर तक है तो हम 300 mm मैक्सिमम छोड़ते हैं, ठीक है? इट कुड वेरी, बट एक नॉर्मल कंडीशन में मैं बात कर रहा हूँ, नॉर्मल प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ. और अगर आपकी डेप्थ इससे ज्यादा जाती है तो मैक्सिमम यू कैन गो अप टू 700 mm, राइट? ओके, नॉट मैंडेट, ठीक है, डेप्थ के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आप छोड़ोगे, ठीक है? तो कहीं कहीं पर आपके क्लाइंट स्ट्रिक्ट होते हैं या क्लाइंट को समझ में नहीं आती हैं चीजें, तो वो पैसा देने से भी रोकते हैं. बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि ये सारी चीजें होती हैं. तो आई एम टेलिंग यू कि जो फॉलो होता है, ठीक है, कि अगर आपकी 1.5 मीटर तक की डेप्थ है तो यू कैन लीव, यू कैन गो अप टू 700, राइट? तो ये हो गई हमारी. तो मुझे ये समझ में आया कि लेंथ और विड्थ जो है, क्योंकि मैं 200 mm छोड़ रहा हूँ, तो जो मेरा ये लेंथ और विड्थ होगा, ठीक है, इसमें से मैं 200 mm क्या कर दूंगा, इंक्रीज, राइट, सॉरी, 100 mm मैं दोनों साइड इंक्रीज कर दूंगा. तो मैंने 100 यहाँ से इंक्रीज किया और 100 यहाँ से इंक्रीज किया, तो ये मेरा 1800 हो गया 2000, और सिमिलरली ये 18,000 हो गया मेरा 2000, राइट? तो नाउ 2000 मल्टीप्लाइड बाय 2000 मल्टीप्लाइड बाय 2000, राइट? ये मेरा लेंथ, विड्थ और हाइट होगा, ठीक है, फॉर ट्रेंच. और ट्रेंच समझ में आ गया. उसके बाद अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर, अगली चीज है सैंड फिलिंग, ठीक है? पीसीसी करोगे 100 mm, 200 कितना रिकमेंडेड है, ठीक है, वो सारी चीजें डिस्कशन के पार्ट हैं बात के. तो अगर मैं बोलता हूँ 100 mm और 200 mm में सैंड फिलिंग करता हूँ और पीसीसी करता हूँ, तो आपको क्या चेंज होगा? क्या लेंथ और वेट चेंज हुई? नो. ऑलरेडी जो आपने एक्सकवेशन के लिए, इस ट्रेंच के लिए लेंथ, विड्थ और हाइट तीन चीजें निकाली थी, सब 2-2-2 मीटर थे. तो क्या ये लेंथ और विड्थ चेंज होगा? नहीं होगा, राइट? पीसीसी के लिए या सैंड फिलिंग हो, दोनों के लिए ये डायमेंशन चेंज नहीं होंगे. सिर्फ क्या चेंज होगी? डेप्थ चेंज होगी, हाइट चेंज होगी, थिकनेस चेंज होगी, राइट? कि अगर मैं पीसीसी 100 mm कर रहा हूं तो इट विल बी 0.1 मीटर, एंड इफ सैंड फिलिंग इज 200 mm देन इट विल बी 0.2 मीटर, राइट? इस तरीके से सैंड फिलिंग और पीसीसी का कैलकुलेशन होगा. क्यों करते हो सैंड फिलिंग और पीसीसी? एनीवन? दीज टू आर द थिंग्स, लाइक आपके पास ऑप्शनल होते हैं, ठीक है, कि आप वहां पर स्टेप्स बनाना चाहते हैं या स्लोप बनाना चाहते हो, और ये इस केस में नहीं होता है, ठीक है? जब आपकी डेप्थ इंक्रीज होती है
तो आपकी सॉइल है ना है, उसको बचाने के लिए आप स्टेप्स बनाते हो या आप स्लोप बनाते हो। ये भी हम पढ़ेंगे डिटेल में जब हम बात कर रहे होंगे उन चीजों की, है ना। जब हम एक्सकवेशन पार्ट पढ़ेंगे तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स कि स्टेप्स कैसे देते हो आप, किस कंडीशन में देते हो, स्लोप कब देते हो, राइट। फॉर लेवलिंग पीसीसी, ओके। तो अहमद ने बोला कि आप एक स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करने की कोशिश करते हो, लेवल्ड सरफेस प्रोवाइड करने की कोशिश करते हो, इसलिए आप पीसी। सेकेंड थिंग, बेड कुशन फॉर लाइक फॉर व्हाट, और स्टील करेक्शन। स्टील करेक्शन में क्या मतलब, स्टील करेक्शन के लिए क्या करते हो अहमद? ओके, सेकेंड थिंग कुड बी व्हाट फॉर पीसीसी। अगर आप पीसीसी नहीं देते, ठीक है, तो अगेन आपको इसके ऊपर कंक्रीट बनानी थी और कंक्रीट फिर से जाकर के सॉइल से कनेक्ट हो रही होती, राइट। तो ये एक लेबल्ड सरफेस तो देता ही है, बट इस चीज से भी आपको बचाता है ना। सैंड फिलिंग कैन वर्क एज एन क्वेश्चन, बट उससे ज्यादा जो इसका काम होता है, ठीक है, वो क्यों होता है, लाइक इट वर्क्स एज एन अल्टरनेट ऑफ एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट, ठीक है। अगर आप एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे हो मान लो, ठीक है, और अगर आप करना चाहते हो, एक अल्टरनेट वे होता है सैंड फिलिंग, ठीक है। इसलिए हम ये सारी चीजें करते हैं। ये सारी चीज कैलकुलेट करने के बाद, मान लो आपने ये सारा चीज कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, सैंड फिलिंग, पीसीसी, आपने एक्सकवेशन कर लिया, उसके बाद ये जो ट्रेपेजॉइडल फुटिंग दिख रही है, इसका एस्टिमेट आपको करना आना चाहिए, राइट। दिस यू शुड बी अवेयर ऑफ। मॉइस्चर फ्रॉम द ग्राउंड, ओके, रस्टिंग, या, ठीक है। तो वो सारे पर्पस भी होते हैं। अब ये जो शेप है, दिस शेप, इसकी कंक्रीट निकालोगे, कंक्रीट का डायमेंशन किसमें, क्यूबिक मीटर में। तो इसका जब डायमेंशन निकालोगे क्यूबिक मीटर में, ठीक है, तो फिर तीन डायमेंशन चाहिए, लेंथ, विड्थ और क्या चाहिए आपको, लेंथ चाहिए, विड्थ चाहिए, और क्या चाहिए, हाइट चाहिए फॉर दिस पोर्शन। तो इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे इस शेप का? हाउ यू विल कैलकुलेट द वॉल्यूम? नाउ देयर आर डिफरेंट अप्रोचेस, ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच हैं। फॉर्मूला विद टू पार्ट्स, ठीक है, एक हर्ष ने बोला कि एक टू पार्ट्स में फॉर्मूला आप तोड़ दोगे, तो you'll break this part into two like this, right? So the downward is part one is what? Rectangle, right? And the top part is what? Trapezoidal. ठीक है, so rectangle is simple, length, width into height, you got the volume. Now this could be, आप इसका पहले एरिया निकाल सकते हो, जो आप 1/2, है ना, सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाय हाइट पढ़ते हो, वो एरिया निकाल के देगा इस टॉप टॉप पार्ट का। उसमें से आप ये वाली जो आपकी डेप्थ होगी, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, विल गेट द वॉल्यूम। एक तो अप्रोच ये है। दूसरा फॉर्मूला क्या है ट्रेपेजॉइडल के वॉल्यूम का? D/3, राइट, A1 + A2 plus under root of A1 A2, right? So this is the formula for calculating the volume of trapezoidal part, और आप इस फॉर्मूले को यूज करोगे जहां पर A1 और A2 आप कुछ भी मान सकते हो। इफ यू वांट टू कंसीडर A1 फॉर द टॉप पोर्शन, यू कैन कंसीडर दैट। इफ यू वांट टू कंसीडर A2 for the top, you can consider that. Why it will not make a change? Because यहाँ पर प्लस और मल्टीप्लीकेशन, तो कैलकुलेशन में ओवरऑल कोई भी चेंज नहीं आएगा। एंड डी इज व्हाट? डी इज द डेप्थ ऑफ दिस ट्रेपेजॉइडल पोर्शन। मेक सेंस? So this is how you calculate for this thing, right? आप कंक्रीट कैसे निकालोगे, है ना, आप सैंड फिलिंग पीसीसी कैसे निकालोगे, तो ये सारी छोटी छोटी चीजें। अब इसमें बहुत सारी ऐसी चीज हैं जिसके लिए आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे कुछ लोगों ने आंसर दिया कि कब आप स्टेप्स करते हो, कब आप स्लोप्स लेते हो, ये सारे डिस्कस करेंगे इन अवर कोर्सेज।
एंड इन द सेम वे फॉर बिलिंग एज वेल, जब हम बिलिंग में मूव करेंगे तो बिलिंग में भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको समझने चाहिए। जब हम रेनफोर्समेंट के बारे में पढ़ रहे होंगे तो स्ट्रक्चर के सेंस से थोड़ी बहुत चीजें समझ में आएंगी आपको कि यार ये ऐसे क्यों मुड़ा है, ऐसे से ऐसे क्यों नहीं मुड़ा है, राइट। आप टॉप एक्स्ट्रा बॉटम एक्स्ट्रा क्यों देते हो, क्या पर्पस होता है। सो लाइक नॉट ओनली लुकिंग इनटू द ड्राइंग और उसको पढ़ करके एस्टिमेट करना पर्पस होना चाहिए आपका, वो चीजें हो क्यों रही हैं उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, राइट। So this is all the demonstration, right, about this thing. I'll give you guys 5 minutes if you have any question to ask related to anything like regarding course or any other thing, and then we will close this. For amount and all, you can connect to the team. No more questions. You all can just go through the link and check the amount. All the details are there. Thank you. Yeah. Course start date is 30th. DBS in detail, yes, all the structures like major structures which are there, those will be covered, right, कि किस तरीके से आपको estimate करना है, ठीक है। और आपको साथ में parallelly estimate करना पड़ेगा with the help of those drawings, right. I'll not be doing each and every part. I'll be giving you the concepts कि आपको कैसे करना है, ठीक है। तो करना आपको है ना, ultimately तभी सीखोगे, मुझे बैठ करके तो नहीं करवाओगे, okay. So that is how you will do, right. I'll guide you कि कैसे करना है, चाहे वो estimation, right. All right, then if no other question, we can close the session, I guess. Okay, sir. Thank you so much. Okay. Thank you, And everyone. Goodbye. and guys, kindly go through the link and enroll yourself and check all the necessary details there. Thank you. Good night.